All right, I think before we start the word, I think this morning has been so prophetic. और इससे पहले आज की शुरुआत करें तो आज की सुबह जो है बहुत भविष्यवाणी रही है। And I'm just reminded to read this verse from Revelation verses 19, chapter 19, verses 10. और इससे पहले मैं वचन की शुरुआत करूं, मैं पढ़ना चाहूंगा प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 19वां अध्याय और उसका 10वां वचन It says the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. कि प्रभु यीशु मसीह की गवाही जो है वो भविष्यवाणी की आत्मा है। Every single word of testimony that we heard this morning और हर एक जो शब्द जो आज के दिन में हमने सुना भविष्यवाणी has का, the spirit of prophecy. उसमें भविष्यवाणी की आत्मा है। So if you've heard a testimony and if you're stirred this morning, tell your neighbor, it's happened for someone, it's going to happen for me. अगर आज के दिन आपने उस गवाही को सुना तो आप ये अपने बगल वाले बाजू वाले व्यक्ति से आप कहिए कि ये जो कहानी परमेश्वर ने उसके लिए करी, परमेश्वर मेरे लिए भी करेगा। Amen. Amen. We are actually now going through this vision that is laid down here. और हम जो है इस दर्शन के जरिए होकर गुजरे जो यहाँ पर रखा गया है। And last week Nigel encouraged us about praying, और पिछले हफ्ते अंकल एचल ने हम लोग को प्रोत्साहन किया कि हम प्रार्थना करें, pleading our case persistently with God. कि हम अपने फरियाद अपने मुकदमे को परमेश्वर के पास बार बार लगातार लेकर जाएं। He talked about that lady who just went and said, और उस महिला के जैसे जैसे वो जाती है न्यायाधीश के घर पे जाकर उसको दस्तक देती है। he did not get her justice. She did not get her justice in the first go, second go, but she goes and और उसको जो है इंसाफ जो है पहली बारी में नहीं मिलता, दूसरी बारी में नहीं मिलता, पर वो बार बार जाती है, उसके दरवाजे पे खटखटाती है। he also gave us the example of Jacob who wrestled with God through the night. और याकूब के बारे में बताते जिस तरीके से याकूब ने पूरी रात कुश्ती करी परमेश्वर के साथ He में, knew he had to get his blessing from God and did not give up. और उसको पता था कि उसको उसकी आशीष चाहिए और उसने हार नहीं माना, And he got it, और उसको मिला। even though with a limp in his leg, और उसके भले से टांग की जो हड्डी वो सटक जाती है, but he got it. उसको मिलता है। Today we'll continue to understand this whole pleading of the case. और इस बात को आज पूरी तौर पे समझेंगे कि किस तरीके से आप अपने मुकदमे की फरियाद को परमेश्वर के पास लेकर जाएं। And this morning I want to bring the story of Elijah when he prayed for the rain. और एलिया की कहानी को आज आपको बताएंगे जैसे वो प्रार्थना करता है। There's such a lesson in that prayer. और कितना सीखने को मिलता है उस प्रार्थना में। So let's just read the scripture. 1 Kings chapter 18 verses 41 to 46. और पढ़ेंगे एक राजा उसका 18वां अध्याय उसके 41 से 46वां वचन। Then Elijah said to Ahab, "Go up, eat and drink, for there is the sound of abundance rain." So Ahab went up to eat and drink, and Elijah went up to the top of Mount Carmel. There he bowed down on the ground and put his face between his knees. And he said to his servant, "Go up now, look towards the sea." So he went up and looked and said, "There is nothing." And 7 times he said, "Go again." Then it came to pass the 7th time that he said, "There is a cloud as small as a man's hand rising out of the sea." So he said, "Go up and say to Ahab, prepare your chariot and go down before the rain stops you." Now it happened in the meantime that the sky became black with clouds and wind, and there was heavy rain. So Ahab rode away and went to Jezreel. Then the hand of the Lord came upon Elijah, and he girded up his loins and ran ahead of Ahab to the entrance of Jezreel. और एक कहता है 41वें वचन से, एलिया ने राजा अहाब से कहा, आप आ जाइए, अपना उपवास तोड़िए और भोजन कीजिए, मुझे मूसलाधार वर्षा होने और गर्जन स्वर सुनाई दे रहा है। अतः अहाब भोजन के लिए चला गया। एलिया करमेल पहाड़ के शिखर पर चढ़े, वह भूमि की ओर झुके और उन्होंने दोनों घुटने के मध्य अपना मुख स्थित किया। फिर उन्होंने अपने सेवक से कहा, अब तू जा और समुद्र की ओर देख। सेवक गया, उसने समुद्र की ओर देखा, वो लौटा, उसने कहा, वहां कुछ भी नहीं है। एलिया ने कहा, तू 7 बार जा। तब जब वह 7वीं बार लौटा तो उसने एलिया से कहा, आदमी की मुट्ठी के समान गोल बादल एक टुकड़ा समुद्र के ऊपर उठ रहा है। एलिया ने कहा, तू जा और अहब को यह कह, अब रथ को तैयार कर।
तुरंत नीचे उतरिए, अन्यथा मूसलाधार बारिश आपके मार्ग को रोक लेंगी। कुछ क्षण पश्चात सदन मेघ और तूफान से आकाश में अंधकार छा गया। तब भीषण वर्षा होने लगी। अहाब रथ पर सवार होकर यिज्रेल की घाटी को चला गया। प्रभु का बल एलिया पे था। एलिया ने अपनी कमर कसी और वह अहाब के आगे आगे दौड़ते हुए यिज्रेल घाटी में पहुंचा। So let's just first understand what was happening at that time in Israel. और सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है इजराइल में। This was no ordinary rain that Elijah was praying about. और ये कोई साधारण जो बरसात के बारे में वो एलिया प्रार्थना नहीं कर रहा। Ahab had turned Israel into idol worship. और अहाब ने पूरे इजराइल को मूर्ति पूजा की ओर मोड़ दिया था। Along with Ahab's wife, he and his wife Jezebel were just building Asherah poles and the idols of Baal everywhere. और अहाब और उसकी पत्नी के साथ जेजेबेल के साथ वो मिलकर मूर्ति पूजा को बढ़ावा दे रहे थे और मूर्ति पूजा की स्थापना कर रहे थे। And that was displeasing God. और ये परमेश्वर को नाखुश कर रहा था। And here God brings a judgment over Israel that time. और फिर परमेश्वर इजराइल के ऊपर न्याय को लेकर आता है। And tells Elijah to proclaim a famine. और वहां पर एलिया को कहता है कि अकाल को घोषित कर। Now when Elijah hears something like that, what is his response? और जब एलिया ऐसा कुछ सुनता है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? God, famine. वो कहता है प्रभु अकाल। Yeah, famine. And then God asked him to pray. और वो कहता हाँ अकाल, और उसको परमेश्वर कहता है कि तू प्रार्थना कर। And he prays and the famine comes. और वो प्रार्थना करता है और अकाल आ जाता है। But God is a God of mercy as well as justice. परमेश्वर दया का और न्याय का परमेश्वर है। Because that's what we are seeing in point number 3 here, mercy and justice. और यहाँ पर लिखा है तीसरे मुद्दे के ऊपर दया और न्याय। God brought justice but also has mercy over his people. परमेश्वर न्याय को लेकर आता है अपने लोगों के ऊपर, पर वो अपने लोगों के ऊपर दया भी दिखाता And है। that's why again he speaks to Elijah in the first verse of chapter 18. And it says, it came to pass after many days that the word of the Lord came to Elijah in the 3rd year, saying, go, show yourself to Ahab, and I will send rain upon the earth. और ये 18वें के पहले वचन में ये कहता है, अनेक दिन बीत गए, अकाल के तीसरे वर्ष एलिया को प्रभु का यह वचन सुनाई देता है, जा और राजा अहाब के सम्मुख स्वयं को प्रकट कर, मैं भूमि पर वर्षा करूंगा। Now in both these cases, Elijah heard God. और इन दोनों जगह पर हम देखते हैं कि एलिया ने परमेश्वर की आवाज को सुना। When he heard God, he saw there was a promise. और जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना तो उसने देखा कि प्रतिज्ञा भी है। He had a case to plead, and as he prayed, things happened. और उसके पास एक मुकदमा था, एक फरियाद थी जिसके लिए उसको प्रार्थना करना था, और ये हुआ। Well, we all must be thinking that yeah, Elijah was a great prophet, and for him to hear God was easy. और हम ये सोच सकते हैं एलिया जो है परमेश्वर का बहुत बड़ा नबी था और परमेश्वर का बहुत बड़ा जन था, तो उसके लिए आसान होगा परमेश्वर की आवाज को सुनना। But this morning we heard Uncle Evan bring a prophetic word. और आज की सुबह हमने अंकल एवन को सुना, वो परमेश्वर के एक भविष्यवाणी के वचन को लेकर आए। We heard Rohan getting a word from God and getting peace in his heart. और रोहन के मन में परमेश्वर का वचन है और उसको शांति मिली। So which means God speaks to all of us. और इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हम सभी से बात करते हैं। Amen. Okay, how many of us have never heard God? ऐसे कितने लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने परमेश्वर को कभी सुना ही नहीं? It's okay because I never heard God for many years. और ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैंने भी परमेश्वर को बहुत सालों से सुना नहीं। But let's learn how to hear God. ये ठीक है, तो सीखें कि परमेश्वर की आवाज को कैसे सुने। How to hear the voice of God. कैसे परमेश्वर की आवाज को सुने। So we all know that God's word is his voice. इस बात को जान लीजिए कि परमेश्वर की आवाज जो है उसका वचन है। When we read the Bible, sometimes a word directly hits us. और ऐसा होता है कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे शब्द जो हमको एकदम लग जाते हैं। And that very verse we can speak in that situation and it works.
और हो सकता है कि हम उस वचन को लेके उस परिस्थिति में, उस हालात में बोले और वो बदल जाए। And sometimes what we have read in the Bible and when we are praying, God deposits something in our heart. और जब हम बाइबल में कुछ पढ़ते हैं और उसको बोलते हैं, परमेश्वर हमारे दिल के अंदर कुछ जमा कर देते हैं। Sometimes God speaks through a rhema word, which means God speaking directly over a situation. और परमेश्वर कई बार जो है हमसे रेमा के द्वारा बात कर सके, यानी परमेश्वर सीधे तौर पे आपसे बात करेंगे। And sometimes God brings a prophetic word for the church or for an individual. और ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर भविष्यवाणी का वचन लेकर आ सकते हैं कलीसिया के ऊपर या फिर आपके ऊपर व्यक्तिगत तौर पे। We have a prophetic word on our church. हमारे कलीसिया के ऊपर परमेश्वर का भविष्यवाणी का शब्द है Victory in the north. How many churches now in the north? कि हमारे पास उत्तर में विजय होगी। और हमारे पास कितनी कलीसिया है उत्तर में? How many churches? कितनी कलीसिया? 14. 14। Yeah. Victory in the east. और पूर्व में विजय। Sylvia is going. Donald's already gone. Amen. सिल्विया जा रहे, अंकल डोनाल्ड अब कोलकाता जा चुके हैं। When God speaks, it happens. और जब परमेश्वर बोलते हैं वो होता है। But the key is when we spend time with God, when we come to God in that posture that God, I want to hear your voice, God speaks. और जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, उस आसन में परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रभु मुझे आपकी आवाज को सुनना है, He gives परमेश्वर us a बात promise. करते हैं। He gives us a promise, and that is our case to plead. और वो हमें परमेश्वर एक प्रतिज्ञा देते हैं और वही हमारा मुकदमा बन जाता है। The 14 churches did not happen overnight. और ये जो 14 कलीसियाएं हैं उत्तर प्रदेश में, ये ऐसी नहीं हो गई। But it happened because we all prayed. और ये इसलिए हुआ क्योंकि हम सब ने मिलकर प्रार्थना करी। So we must know that if God spoke to Moses, Elijah, Isaac, Jacob, he will speak to you and me. और अगर परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब से परमेश्वर ने बात करी है, परमेश्वर Amen. आपसे और हमसे भी बात करेगा। Every single person, tell your neighbor, God speaks to me. और यहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति ये कहिए, परमेश्वर मुझसे बात करता है। Now we also have a testimony in our lives where God spoke to us about something. और हमारे पास भी जीवन में गवाही है जहां पर परमेश्वर ने हमसे कुछ बात करी। We got married in 2006. और भाई का जो शादी होता है 2006 में होता है। But till 2008, both me and Amrita did not want kids. I mean, it happens when you get married, right? Uh, 2006 से लेकर 2008 तक हम लोगों को बच्चा पैदा करने की ऐसी कोई जल्दी नहीं थी, कोई चाहत नहीं थी। इनफैक्ट हमको बच्चे अच्छे नहीं लगते थे। And we didn't like kids. But in 2008, there was this urge that started to happen in our hearts, both together. और 2008 में हमारे अंदर जो है एक तमन्ना होना शुरू हो गई। And every kid we would look at will say, "Oh, so sweet, so cute." और हर एक बच्चे को देख के बोलते हैं कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है। So basically, God was depositing something in our heart, and we said, "Okay, now we're ready to have kids." और परमेश्वर ने हमारे दिल में कुछ बातों को जमा किया और हम तैयार हो गए कि अभी हमें बच्चे करने हैं। But sometimes, it's just like Bombay rain. We know that it's going to rain, so we just carry an umbrella. और कई बार ये जब मुंबई की बरसात के जैसा होता है, हमें पता होता है कि बरसात होने इसलिए हम छाता लेके निकल It's जाते a हैं। natural reaction. और ये जो प्राकृतिक तौर पे हमारी प्रतिक्रिया होती है। So even for a husband and wife, it's a natural reaction that when you want to start trying for babies will happen. और ये आम बात है एक दंपति के लिए, जब उनको पता चलता है कि उनको बच्चे होने तो वो हो जाते हैं। But this time it was different. पर इस बार ये अलग था। We were surprised. We were trying for almost 8 months and nothing was happening. और हम 8 महीने कोशिश कर रहे थे पर कुछ नहीं हुआ। Both of us went through all the possible tests. We were in London, so obviously the highest quality of tests were being done to us. और हम लंदन में थे तो आप सोच सकते हैं कि कितने हम लोग उच्च स्तर पे जो है टेस्ट करवा रहे थे। And nothing was happening. और कुछ नहीं हो रहा We था। were trying, we were praying continuously, nothing was happening. और हम बार बार लगातार प्रार्थना कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ। But one day when Amrita was just spending time with God, God deposited something in her heart. और बहन अमृता जिस तरीके से अपना समय परमेश्वर के साथ बिता रही थी She अपने was प्रार्थना के crying समय, out for the same thing. She's crying out for a baby, and God spoke to her that we will have a handsome boy and we will call him David. और वो प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर मुझे बच्चे के लिए, वो प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर से। परमेश्वर ने कहा तुझे जो है एक खूबसूरत लड़का होगा और उसका नाम दाऊद रहेगा। She got excited. और वो उत्साहित हो गई। Just as God gave a promise to Zechariah that you will have a son even in that age. और जिस तरीके से परमेश्वर ने जकरिया को कहा कि उसके बुढ़ापे की उम्र में उसको बच्चा होगा।
Well, Zechariah had an angelic experience, but Amrita did not have an angelic experience. और जकरिया के पास परमेश्वर का दूत आया था, फरिश्ता आया था, उसको वैसा परमेश्वर ने बताया था, पर But हमारे she पास नहीं आया was था। sure that God had spoken to her. और वो जो है अपने अंदर एक बात से पक्के हो गए थे कि परमेश्वर ने ही बोला है। And now our prayer changed. और अब उनकी प्रार्थना बदल गई। From the time we were saying, God, give us a baby, और हमारी प्रार्थना ये हुआ करती, प्रभु हमें बच्चा दे दे, it started to become, God, bring us that David. और वो प्रार्थना बदल के अब ये प्रार्थना होगी, प्रभु उस दाऊद को आने दे। Just like Elijah, when God spoke to Elijah that I will send the rain, he went up to Mount Carmel and sat down to pray. और जिस तरीके से परमेश्वर ने एलिया से कहा कि मैं बरसात को भेजूंगा, उसी तरीके से एलिया जाता है उस पहाड़ पर और प्रार्थना के लिए बैठ जाता है। He was full of faith वो विश्वास से भरा हुआ था because God had spoken. क्योंकि परमेश्वर ने बोला है। I will be honest, I was not filled with so much faith than Amrita. She was filled with faith. और आपके साथ ईमानदारी से मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई जो थे इतने विश्वास में मजबूत नहीं थे, बहन अमृता जो थी वो विश्वास से एकदम भरी हुई She थी। was filled with faith that we will have a handsome boy and we will name him David. और उनके पास जो है वैसा विश्वास आ गया था, अपने विश्वास में पक्के हो गए थे कि मेरा जो है एक लड़का होगा, वो खूबसूरत होगा, अच्छा होगा और उसका नाम दाऊद रहेगा। So Elijah and Amrita both had one thing in common. और एलिया में और बहन अमृता में एक बात आम है, They had a promise. उनके पास प्रतिज्ञा थी, They had a case to plead. उनके पास एक मुकदमा था जिसकी फरियाद They परमेश्वर had के पास to लेके जाना go. था। They could go to God and say, God, you have spoken, now do this. और वो ये कहते परमेश्वर से, प्रभु आपने ये बोला है और आपको ये करना है। So church, I want to encourage you about something. और कलीसिया, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा किस बारे में, If we aren't hearing God, अगर हम परमेश्वर के नहीं सुन रहे, we need to go dig into the Bible. हमें जाना है, अपनी शास्त्रों को, अपने बाइबल को खोलना है। The Bible says faith comes by hearing and hearing the voice of God. और बाइबल का, परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास आता है सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से। So if you are not hearing God, the problem is that we are not reading his word. अगर हम परमेश्वर को नहीं सुन पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम अपनी बाइबल को, अपने शास्त्र को नहीं पढ़ रहे हैं। Amen. So God speaks to everyone. So if he is not speaking to us, we need to go to the Bible. The number 2 point is persistence in prayer. और दूसरी बात, प्रार्थना में बने रहना, बार बार और लगातार आगे करते रहना। You know, after a famine, your heart is also down and grumpy and saying, will the rain come? और अकाल के बाद आपका दिल भी एकदम बैठ जाता है और आप ये सोचते कि अब बरसात आएगी भी। But again, Elijah knew that God had spoken to him. He was wanting to be persistent. और एलिया इस बात को बखूबी जानता है कि परमेश्वर ने बोला है और इस बात को लेकर लगातार वो प्रार्थना करता है। Because in Hebrews 11:1 it says that now faith is the substance of things hoped for, but the evidence of things which are not seen. और इब्रानियों की किताब उसका 11वां अध्याय और उसका पहला वचन ये कहता है कि विश्वास उन बातों का पक्का निश्चय है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं का अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। पक्का निश्चय, पक्का निश्चय, substance, पक्का निश्चय, substance for something to be hoped for. ऐसी बातों के लिए पक्का निश्चय जिसकी हम आशा करते हैं। We didn't welcome Noel. He's come back after a long time, so I'll just take this opportunity to welcome Noel. और इसी के साथ मौका निकालेंगे, नोएल के लिए बहुत समय के बीच में हमारे बीच में आए। But I know that Shibi was praying and she was asking all of us in the house group to pray for Noel's job. और आंटी शिबी जो है ग्रुप में डाल रहे थे कि हम प्रार्थना करेंगे नोएल के काम के लिए। Her substance, that something to be hoped for, that Noel will get a job, was the word of God. और उसका पक्का निश्चय था उनका कि नोएल को जो काम मिलेगा। We had not seen a job yet, हमने अभी तक काम को देखा नहीं, but Noel did not get one job, he got 2. और उसको एक काम नहीं, उसको 2 काम मिला। Amen. Okay, so the thing is that we may hope something, और बात यह है कि हम किसी चीज की उम्मीद कर सकते हैं, but the difference between just hoping and having faith is this. कि किसी चीज की उम्मीद होना और किसी चीज के लिए जो है दृढ़ विश्वास होना, वो दोनों अलग है। Faith is backed by the word of God. और दृढ़ विश्वास आता है परमेश्वर के वचन से। And then you arrive in that space where you can say, I cannot see it, but God, you will do it. और आप ऐसे स्तर पे पहुंच जाते हैं, आप ये कहते हैं भले से मैं उसको देख नहीं सकता, And पर just मुझे as विश्वास है परमेश्वर Elijah, करेंगे। he sat down on Mount Carmel, he put his face between his legs and he prayed. और एलिया यही करता है, वो पहाड़
जो करमेल का पहाड़ है वहां पर जाता है, अपने घुटनों के बीच अपना मुंह रख के वो प्रार्थना करता है। He finishes praying, he rises up, he says to his servant, "Go and see, the rain is coming." और वो आता है, प्रार्थना करता है और फिर अपने दास को बाहर भेजता है और ये बोलता है, जा देखकर आ कि बरसात हो रही कि नहीं हो रही है। And what does the servant come and say? सेवक आके क्या कहता है? कुछ नहीं है, कहीं નથી. हाँ, in Gujarati they say nothing, अरे गुजराती जाति में नथी बोलते हैं। right? Second time, he goes back again. दूसरी बार वापस से जाता है, Again he prays. वापस से प्रार्थना करता है, Again he sends his servant. वापस अपने सेवक को बाहर भेजता है He sends a go and check that there is rain. और वो कहता है बाहर जाके देखकर आ कि बरसात हो रही कि नहीं। Elijah did not say to his servant that maybe there is rain. और एलिया ने अपने सेवक को ये नहीं कहा कि बाहर जाके देख शायद बरसात हो रही है कि नहीं His हो रही है। words, according to the Bible, he said, "Go and check, the rain is coming." और वो ये कहता है कि बाहर जाके देख बरसात हो रही है। And 7 times he does the same thing. 7 मर्तबा 7 बार वो ये करता है। He obviously was in a posture of expectation because God had spoken. और वो एक अपेक्षा की मुद्रा में था कि परमेश्वर कुछ करेगा। But the answer he was getting, उसको क्या जवाब मिल रहा था? nothing. कुछ नहीं। Okay, I know Lourdes is sitting here, and Lourdes has been praying for Giles for almost 15 over 15 years, and Stanley as well. और आंटी लूट्स जो है अपने बेटे जाइल्स के लिए, अपने पति के लिए 15 साल से प्रार्थना कर रहे हैं। And she's been praying and just continuously being standing on that promise. और बार बार वो प्रार्थना कर रहे हैं और उस जो वायदा है परमेश्वर का, परमेश्वर की प्रतिज्ञा, उस पर खड़े। 15 years is a long time, अब 15 साल काफी लंबा समय होता है, right? But she stood on पर वो खड़े रहे because she knows that God will bring. और वो इस बात पे अड़े रहे कि परमेश्वर करेंगे। And in our case, obviously we were also praying for the baby. और भाई के जो केस में, भाई के मुकदमे में, भाई भी जो एक बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। And after 6 months of continuously praying with the promise, और 6 महीने लगातार उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा को लेके प्रार्थना करने के बाद one night Amrita wakes me up at 2 a.m. और रात के 2 बजे बहन अमृता भाई को जगाती है shows me the pregnancy stick. और प्रेगनेंसी की स्टिक दिखाती है। And we are just like, we cannot speak. We are just, और कुछ बोल ही नहीं पाए, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। we were so overwhelmed and overjoyed, and we started praising and thanking God. और एकदम खुश हो गए, खुशी से एकदम भर चुके थे कि परमेश्वर ने ऐसा किया। But wait, the rain does not come as yet. सुनो सुनो, बरसात अभी तक नहीं आई है। All right, the very first month, Amrita had a complication. और पहले महीने में उनकी जो प्रेगनेंसी में जो है कोई एक दुविधा आती है। And the complication is that the baby started to grow in the fallopian tube, which is called as an ectopic pregnancy. Okay. एक दुविधा आई थी उस समय कि डॉक्टर ने कहा कि जो बच्चा था वो गर्भ में नहीं बढ़ रहा था, बल्कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर बढ़ना शुरू हो गया था। उसका नाम है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब कि बच्चा सही जगह पे पैदा नहीं हो रहा। Alright, which means that we had the promise that David is coming, but David was in the fallopian tube, not in the uterus. और दाऊद के आने के बारे में हमको पता है कि दाऊद आने वाला है, पर वो अलग ट्यूब में था। We were obviously struck with fear, questions. और हमारे पास सवाल आ रहे थे। Well, the doctors told us one thing, that we will have to abort this pregnancy. और डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि हमें जो है बच्चे को गिराना पड़ेगा, because it will be life threatening for Amrita as well. क्योंकि ये जो है माता के लिए, उनकी जान के लिए भी खतरा है। And the operation very well meant that from there on we could never have babies. और ऑपरेशन के बाद ये भी बोला गया था कि हो सकता है कि आपको आगे बच्चे ना हो। Amrita hated needles, and every single hour they were putting needles in her. और बहन अमृता को सुइयों से नफरत है और हर पल जो है लोग सुइयां घुसा रहे थे। We both were gripped in fear that moment. और हम दोनों जो थे डर में समा गए थे। And that very moment God reminded Amrita again of the promise. और उस डर वाले माहौल में भी परमेश्वर ने बहन अमृता को उस प्रतिज्ञा के बारे में याद दिलाया। The promise of David. दाऊद की प्रतिज्ञा। We started to pray. हमने प्रार्थना करना शुरू किया। Amrita was filled with faith again. और अमृता बहन जो अमृता है वो अब विश्वास में भर गई वापस। And she negated every wrong thought that started to come and started replacing that with that promise.
और उनके पास जो नकारात्मक सोच आ रही थी, बुरी सोच आ रही थी, उसको परमेश्वर की सोच के साथ मिलाया। And at that moment, I saw that in her eyes and said, I don't believe in what the doctors are saying. We will have a son and we will name him David. और वो ये कहती, डॉक्टर जो कह रहे हैं मैं उस पर यकीन नहीं करूंगी, बल्कि परमेश्वर ने जो कहा है कि मुझे लड़का होगा, उसका नाम मैं दाऊद रखूंगी। She was holding on to that promise. और उस विश्वास को पकड़े हुए थे। Just as Elijah, 6 times he went and prayed again and again, he did not leave the promise. और जिस तरीके से एलिया ने भी प्रार्थना कर रहा, 6 बारी वो उसने प्रार्थना करते गया और भले से उसने कुछ देखा नहीं। Judge, that is persistence. और उसके जो लगातार वो प्रार्थना करते हुए आ रहा था। The persisting prayer of Thomas and Johnny, just seeing their parents come in now. और भाई जॉनी और भाई थॉमस की जो निरंतर प्रार्थना से हम देखते हैं उनके माँ बाप का उद्धार हो जाता है। Are we facing any drought-like situations in our lives? क्या आप अपने जीवन में ऐसा सूखापन, ऐसा अकाल जैसा आप कुछ महसूस कर रहे हैं? No, and go to God and He will speak on that drought situation. इस बात को जान लीजिए और परमेश्वर के पास वो जो सूखा और ये जो अकाल जैसा समस्या है आपके पास, उसको And I लेकर just want to जाइए। encourage you that when you pray, it will happen because He has spoken. और आपको बता दे, जो परमेश्वर ने बोला है वो होगा, क्योंकि इस बात को परमेश्वर ने खुद बोला है। When we plead our case, God listens to our prayers and He does it. और जब हम अपनी फरियाद को परमेश्वर के पास लेकर जाते हैं, परमेश्वर उसको सुनते और उसको पूरा करते हैं। We've heard so many testimonies in the last 3 months about cancers being healed, people coming out of ventilators, so many testimonies. और हमने पिछले 3 महीने में कितनी गवाहियों को सुना है कि कैंसर ठीक हो रहा है और लोग जो वेंटिलेटर में थे वो बाहर आ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। These things happened because we believed and we prayed. और ये चीजें होती क्यों है? क्योंकि हम विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं। So if you've been waiting upon your breakthrough, tell your neighbor, I will not stop praying. अगर आप अपनी बेदारी, अपने छुटकारे का इंतजार कर रहे हैं, आप ये कहिए, I will not stop praying. मैं रुकूंगा नहीं, मैं प्रार्थना जारी रखूंगा। I will see the cloud coming. मैं देखूंगा बादल को आते हुए। I will continue to pray. मैं लगातार प्रार्थना करूंगा। My breakthrough is coming. मेरी छुटकारा, मेरा चमत्कार होगा। But you know what? आपको पता है क्या? God's ways are not our ways. परमेश्वर के तौर तरीके हमारे तौर तरीके नहीं है। When we pray for rain, we want to see the cloud black at the same point of time. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जैसे मैं प्रार्थना करूंगा मुझे बड़ा काला बादल देखना है। We want to see rain pouring in. और मैं देखना चाहता हूं कि बारिश ऐसा आ जाए, मूसलाधार बारिश। But God sometimes brings a cloud as big as this. और कई ऐसा होता है कि परमेश्वर बादल तो लेकर आता है, पर वो छोटा सा इंसान की मुट्ठी के जैसा होता है। You know, what would happen if one of us saw a cloud like this? Will we even think that, let me carry an umbrella? अगर आपको आसमान में इतना छोटा सा बादल देखता है, आप सोचोगे कि आप अपना छाता लेकर बाहर जाओ? Or let me carry a raincoat, or let me get ready for the rain? क्या आप तैयारी करोगे? आप ये बोलोगे मैं अपना रेनकोट और जो है मैं अपना सामान लेकर सब जाता हूँ इस बारिश से बचने के लिए। But you know what Elijah told Ahab? और आपको पता है एलिया ने आहाब से क्या कहा? He said, run, the rain is coming. और वो बोलता है दौड़, क्योंकि बारिश आने वाली है। And Ahab also girded his loins and started running. और आहाब जो भी है वो तैयार होता है और दौड़ने के लिए निकल जाता है, Because he just saw this, क्योंकि उसने ये देखा a size of a fist cloud. और एक इंसान के मुट्ठी के आकार के बराबर का एक बादल। But he knew that God had spoken that he's sending the rain, which means he's sending the rain. और क्योंकि उस बात को जानता था, क्योंकि परमेश्वर उस बादल के जरिए उस बारिश को भेजने वाले, And क्योंकि that was परमेश्वर ने just बोला a है। sign to say that God, you have answered my prayer. और ये एक चिन्ह था कि परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। And with that faith, he starts running. और उस विश्वास को लेके वो दौड़ना शुरू करता है। And then Ahab also starts on his chariot. और आहाब भी जो अपने रथ में सवार होकर भागता है। And the rain comes. और फिर बरसात आती है। The rain comes and fills Israel. इजराइल आते हैं, पूरे इजराइल में बरसात होना शुरू, इजराइल को भर देती है। A dark black cloud covers Israel after that. और पूरा एक बड़ा विशाल का एक काला बादल के इजराइल के ऊपर छा जाता है। Amen. So what about my rain? मेरे बरसात के बारे में क्या? God is saying ectopic pregnancy. और परमेश्वर कह रहा है Ectopic. प्रेगनेंसी। God is saying we'll have to operate. Oh, the doctors are saying we'll have to operate.
और डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको सर्जरी करानी पड़े, आपको ऑपरेशन कराना होगा। And Amrita is just praying and saying, God, open their eyes. और बहन अमृता कह रही कि परमेश्वर उनकी आंखों को खोल। And then finally, just before they were about to take her to the operation theater, there's an Indian doctor that arrives, the head of the department. और जैसे उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे, एक भारतीय डॉक्टर आते जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो आते हैं। She said, I'll do the final ultrasound, and if you don't find the baby, I'm sorry, but we'll have to abort. और वो कहते हैं मैं आखिरी बार जो है आपका अल्ट्रासाउंड कराऊंगी, और अगर हमें जो है दुविधा देखी, हम बच्चे को गिरा देंगे। And then she starts doing the ultrasound. वो अल्ट्रासाउंड करना शुरू करते हैं। She stops. वो रुक जाती हैं। And you see the baby? बोलते हैं आपको क्या वो बच्चा दिखा? She's telling the doctors, 4 of them standing, who have been checking her for the last 4 days, can't you see the babies? Are you guys foolish? और वो अपने जो डॉक्टर्स, जो छोटे डॉक्टर्स है वहां पर, जैसे वो खड़े रह के उनको देखते, 3 से 4 डॉक्टर वहां पर रहते हैं, वो अल्ट्रासाउंड कर रहे रहते हैं, और वो कहते हैं क्या तुम्हें बच्चा दिख रहा है? And everybody, all of us are like, where's the baby? और हम सब देख रहे हैं बच्चा कहाँ है? The size of a pea is sitting in the uterus. और मटर के दाने के समान एक बच्चा जो है वो यूट्रस में बैठा है। We were so filled with awe in God. और हम परमेश्वर के सामने एकदम आश्चर्यचकित हो गए। God said it. परमेश्वर ने कहा था, And he did it. और परमेश्वर ने करा भी। And I want Ashish to stand up. And I want you to see the size of the pea today. और हम चाहते देखिए ये It's जो 6 feet tall. मटर के दाने के जितना जो बच्चा था, आज 6 फीट ऊंचा है। This was the baby the doctor said, abort. और यही वो बच्चा है जिसको डॉक्टर ने कहा कि इसको गिराना पड़ेगा। But God gave him a height even taller than his dad. और उनके जो पिता है उनसे भी ज्यादा उनको हाइट दिया। This is who our God is. और ये हमारा परमेश्वर है। This is what happens when we persist in prayer. और यही होता है जब हम बार बार लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। God brings the rain. परमेश्वर बरसात को लेकर आता है। God brings the miracles. परमेश्वर चमत्कार को लेकर आता है। We've heard 2 testimonies this morning about people who did not have children and they have children now. और हमने गवाहियों को सुना कि ऐसे जोड़े के बारे में जिनके पास बच्चे नहीं थे, पर परमेश्वर ने उनको बच्चे दिए। So Ashish's full name is Ashish David Chopra. और आशीष का पूरा नाम आशीष डेविड चोपड़ा है। So David is Ashish. और डेविड है वो आशीष है। We call him David. He likes to call himself Ashish, but the real reason is that, thank you for saying that, but the real reason is my mom's still a Hindu. She wanted a name which was more Indian, so we said, okay, fine, we'll have Ashish added in front of him. Ashish also means blessing, so we have Ashish David Chopra. और भाई की जो माता जी है वो हिंदू है, तो वो चाहती थी कि एक ऐसा उस तरीके का नाम हो, तो इसलिए उसका नाम आशीष डेविड चोपड़ा है। Right? So our prayers were answered. और हमारी प्रार्थना का जवाब मिला। Lourdes' prayer was answered. और आंटी लूट्स की प्रार्थना का जवाब उनको मिला। I just saw Lourdes' eyes when I saw Giles in the church for the first time. I was like, he's come. और जब आंटी लूट्स को देखते तो उनकी आंखों में अलग सी चमक होती है और वो When you're दिखाती है, praying for देखो मेरा 15 बेटा। years for your family and they come in, that's a joy you cannot express. और जब आप अपने परिवार के सदस्य के लिए 15 साल निरंतर आप प्रार्थना करते हो, Let's जब वो आते celebrate हैं, and thank God for all the small things God has shown us sometimes. और आइए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे उन सारी छोटी चीजों के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिखाया। Maybe he's shown a small cloud, और हो सकता है उसने आपको एक छोटा सा बादल a दिखाया हो, small breakthrough. एक छोटा सा बेदारी को। I was talking to somebody this week and she did not have a job and then finally she got a job which she was not very happy with. और मैं किसी से इस हफ्ते के दौरान बात कर रहा था, उसके पास नौकरी थी पर नौकरी मिलती पर उससे वो खुश नहीं होती। And she was down. She was like, I'm not liking what I'm doing, but I'm doing it. और वो ये कह रही थी मुझे पसंद नहीं आ रहा जो मैं काम कर रही हूँ, मुझे उसमें मेरा मन नहीं लग रहा। And I just told her, hang in there, Joseph. Your breakthrough is coming. और मैंने उससे कहा वहां टिका रहे क्योंकि आपका चमत्कार, आपका बेदारी आपके पास आ रहा है। And I know that she will get a job that she will love, she will be able to serve God, and she will glorify God. और मुझे पता है कि उसके पास वो नौकरी आएगी और वो उसको पसंद भी आएगी और वो परमेश्वर की सेवा भी करेगी। So lastly, I just want to encourage everyone that when we say that we have to read the word to hear God, why do we have to do that? और जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर हमके परमेश्वर की आवाज को सुनना है तो हमें वचन को पढ़ना है, वो मैं क्यों कर आपको बताता Because हूँ। Hebrews 4:12 says that the word of God is living and active.
और क्योंकि इब्रानियों की किताब 4 उसका 12वां अध्याय ये कहता है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और कार्यशील है। Are you living and active right now? क्या आप जीवित हो, जिंदा हो और आप काम करने जैसे हो? Are you all living and active right now? क्या आप जीवित हो और काम कर सकते हो? I can't hear. आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। Now tell your neighbor, the word of God is living and active. और इसी तरीके से अपने बगल वाले व्यक्ति से कहिए, परमेश्वर का वचन जीवित और कार्यशील है। No matter how long your breakthrough will take, but it will come. और मायने नहीं रखता आपकी बेदारी को कितना समय लग जाए, पर वो आएगा और वो पूरा होगा। It will come. वो आएगा। If he said he will do it, he will do it. अगर परमेश्वर ने आपसे कहा है कि वो उसको करेंगे, तो उसका मतलब है वो करेंगे। We sang this song this morning that God has brought out this far, he will take us ahead. और जिस तरीके से हमने कुछ समय पहले गीत गाए, परमेश्वर ने हमको इतनी दूर लेकर आया, ये नहीं कि हमको वापस लेकर जाने के लिए, बल्कि आगे लेकर जाने के लिए। Because his name is Ebenezer. क्योंकि उसका नाम एबेनेजर है। If he's brought us this far, he will take us forward as well. क्योंकि परमेश्वर ने हमको इतने दूर लेकर आया है, परमेश्वर उसके आगे भी हमको लेकर So जाएगा। church, let's continue to pray for Elisha, for Enoch. और हम लगातार कलीसिया जो है अलीशा इनोक के लिए हम प्रार्थना करें। Let's continue to pray because the word of God says that children are a gift from God. Every good gift that comes from him is perfect. और यही परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक भली वस्तु परमेश्वर की ओर से, तो बच्चे जो है परमेश्वर की ओर से माँ बाप के लिए तोहफा होते हैं। We are not seeing this as yet, हमने अभी तक इसको देखा नहीं हो सकता है, but let's continue to pray. पर आप लगातार इस बात को प्रार्थना करें। I want to close with one more of my testimony that actually happened when I was not even a Christian. और एक गवाही के साथ मैं समाप्त करूंगा। ये तब हुआ जब मैं मसीह नहीं था। My brother had come to Christ, और भाई के जो बड़े भाई आते हैं वो मसीह में आते हैं, but I was still an unbeliever. और भाई तब भी जो है अविश्वासी थे। And at that point in time, we were shifting our home from one place in Sonipat to another house. सोनीपत से एक दूसरी जगह पर हम जो है घर बदल रहे थे। And the entire household was on a truck. और पूरा जो घर था, पूरा घराना था, वो एक ट्रक पर था। And suddenly a dark cloud came over. और अचानक से एक काला बादल आ जाता है। My father just kind of started to weep and shout and howl, and he was so terrified because the rain would destroy the whole house. और भाई के पिताजी जो है वो डर जाते हैं क्योंकि और रोने लगते हैं कि उसकी वजह से बारिश की वजह से पूरा जो सामान है और पूरा घर तहस महस हो जाएगा। Now remember, out of the 5 of us, only one person is believing here. और आपको बता दें, 5 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति विश्वास करता है। And he started to pray. और वो प्रार्थना करना शुरू करते हैं। He said, Lord, if you ask Elijah for the rain to come, you are the same God who holds the rain in his hands. और परमेश्वर, अगर आप वो परमेश्वर है जिसने एलिया के लिए बारिश को लेकर आया था, आप वही परमेश्वर है जो बारिश को अपने हाथ में पकड़े हुए रहते हैं। You can ask this rain to go away. प्रभु, आप ये कर सकते हैं कि इस बारिश को ऐसे निकाल सकते हैं। And in a matter of minutes, the clouds cleared. और कुछ ही समय में बादल हट जाते हैं। As an unbeliever, I witnessed something that I had never seen. और अविश्वासी होने के बावजूद मैंने उस चीज को देखा जो मैंने कभी सोचा नहीं था। I was wondering, who is this God who holds the rain? मैं ये सोचता था, ऐसा कौन सा परमेश्वर जो बारिश को धरता है। And not just that, it took 3 days for us to shift and move the entire furniture. और हमें 3 दिन लग गए पूरे घर की शिफ्टिंग करने में। And as we were moving the last piece in, it poured. और जैसे हमने आखिरी टुकड़ा निकाला, वहां पर मूसलाधार बारिश हो गई। God held the rain for 3 days till the time we moved. परमेश्वर ने 3 दिन तक बारिश को रुका के रखा था। He loves us. वो हमसे प्यार करता है। He loves us. वो हमसे प्यार करता है। When we pray and ask him, he says, I want to give that to you. और जब आप प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगते हैं, वो Because कहता है मैं तुम्हें देना In चाहता हूँ। Matthew 21, it is written. मत्ती 21 में ये लिखा है। Des also brought that word this morning. और आंटी डेज ने भी इस वचन को लेकर आया। Truly I tell you, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you say to this mountain, go throw yourself into the sea, and it will be done. और 21वें वचन में ये कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अगर तुम्हारे पास विश्वास हो और उस पर तुम शंका ना करो,
तो तुम जिस तरीके से इस अंजीर के पेड़ के साथ हुआ, तुम इस पहाड़ से कह दो कि जा उखड़ और समुद्र में लग जा, तो ये हो जाएगा। If we believe, अगर आप विश्वास करते हैं we will receive whatever we will ask in prayer. कि जो कुछ आपने प्रार्थना में मांगा है वो आपके लिए किया जाएगा। But the factor is that we need to have a case to plead. और मायने की बात यह है कि आपके पास वो फरियाद होनी चाहिए। We need a spoken, written word, whatever it is from God that is in our situation. और हमारे परिस्थिति में परमेश्वर का बोला हुआ लिखा हुआ वो वचन होना चाहिए। In all of these situations that we've spoken and seen miracles, God had spoken and He did it. और ये परिस्थितियों में जिनमें हमने चमत्कार को देखा, परमेश्वर ने इन शब्दों को बोला है, Because His word is living and active. क्योंकि उसका वचन जीवित है और कार्य करता है। Amen. So, church, as we learn now, as we understand the meaning of pleading our case, और कलीसिया जिस तरीके से हम इसके बात के मतलब को समझते हैं कि अपने फरियाद को परमेश्वर के पास कैसे लेके जाना है, let's also settle in our hearts that, Jesus said in Matthew that do not pray with much words in vain. और इस बात को अपने दिल में बिठा लें, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो है चीजों को लेके बार बार एक ही शब्द में उसको फिजूल तौर पे प्रार्थना ना करें, But instead, take the word of God and pray through that. और इसके बजाय आप परमेश्वर के वचन को लीजिए और उसको लेके आप प्रार्थना करें, And the kingdom of God will come in your life. और परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में जरूर आएगा। Amen. आमीन।